ঘটনাটো ৰাতি হৈছিলে। তেওঁ শুই আছিলে, ময়ো শুই আছিলোঁ। ৰাতি টোপনি ভয় মতাৰ নিচিনা শুনিলোঁ। তেওঁ ৰাতি দেৰিকৈ কামৰ পৰা আহে যে। তাৰপিছত মই দুৱাৰখন ঘপককৈ খুলি দিলোঁ। হঠাৎ 4জন মানুহ সোমাই আহিলে আৰু দুৱাৰখন ভালকৈ নালাগে, টানি দিলে গম পায়। টানি দিছিলোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। মই উপৰি খাই পৰিলোঁ। লগে লগে তেওঁ সেই লাইটৰ চিলমিল পোহৰত তেওঁ দেখি পাইছে। মোৰ লগত শুই থকা নাছিলে তেওঁ। লগে লগে মই চিঞৰটো মাৰি উঠিলোঁ। তেওঁ টোপনিত হৰুৱাই আছিল। তাৰপিছত সিহঁতে তেওঁকে ডাইৰেক্ট মাৰিছে। মই যিহে পাইছোঁ তিহে তেওঁক মাৰিছোঁ কৰিছোঁ। ঠিক তেওঁক বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, নোৱাৰিলোঁ। বহুত লাগিলোঁ। ছোৱালীজনী হোৱা পাতিতে টোপনি খবৰে যেনেকৈ যি পাইছোঁ মানুহজনক বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। 4জন মানুহ মোক বান্ধি আহিছে। ছোৱালীজনীয়ে মা বুলি কৈ চিঞৰি উঠিছে। হাবুত মাৰি ধৰি তাইক মইও চাব নিদিলোঁ। এজনে ডিঙিৰ ওচৰত কটাৰী লগাই কৈছে, চিঞৰিলেও তহঁতৰ দিগদাৰ আছে, তহঁতকো শেষ কৰি দিম। তেওঁৱে কিবা আছিলে যিটো আজিলৈকে মোক কোনোদিনে একো এটা নক'লে। মই বহুত জানিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ। মাজে মাজে কয়, মই মৰিলে তুমি কাৰ লগত থাকিবা, কি কৰিবা, তুমি কেনেকৈ জীয়াই থাকিবা। মই কওঁ, কি ফাল্টু কথা কোৱা, আছোঁ নহয়, ছোৱালী আছে, মই আছোঁ, আমি লগে ভাগে থাকিম নহয়, তুমি যি টি কথাবোৰ নক'বাচোন। মৰিলে জানো তুমি থাকিব পাৰিবা। কেতিয়াবা ধেমালি চলাইও কয়, কিবা কয়। মই জানিবলৈ চেষ্টাও কৰোঁ। এনেই ঘূৰিছোঁ আকৌ, এনেকৈ কৈ থৈ দিয়ে। ছোৱালীজনীক যিটো হাবুত মাৰি থলোঁ আৰু মানুহকেইজনী লাষ্টত উশাহটো কৰিছে। মই গম পাইছোঁ তেওঁ গ'ল, তেওঁ গুচি যাব আৰু। ময়ো ছোৱালীজনীক হাবুত মাৰি ধৰিয়ে থাকি গ'লোঁ। তেওঁ ওলাই গৈছে। লগে লগে দুৱাৰ বন্ধ কৰি ভাইটিক মাতিছোঁ। ভাইটিয়ে ভাইটি তই কিবা এটা হৈ গ'ল, চব হৈ গ'ল, শেষ হৈ গ'ল বুলি মাতিছোঁ। সি লগে লগে গৈ দেখিছে। তাৰপিছত নিবলৈ গাড়ীত ঠিক কৰিছোঁ। গোটেইটো মানটোতে উশাহ লৈ আছে। ইমান উশাহটো উশাহটোলৈকে মই তেওঁৰ ওচৰতে আছোঁ। তেওঁ গুচি গ'ল। তাৰপিছত নহ'লগৈ, হস্পিটেল নিব নাপালোঁগৈ আৰু তেওঁ গুচি গ'ল। শুই থকা অৱস্থাতে তেওঁ যুঁজিছে, বহুত যুঁজিছে। মই যিহে পাইছোঁ তেওঁক মানুহজনক চেষ্টা কৰিছোঁ। তেওঁ যুঁজি আহিছে। তেওঁলোক যোৱাৰ লগে লগে মই লাইটৰ চুইচটো দি চাইছোঁ, মানুহজন বাগৰি আহি পাইছেহি। বহুত চেষ্টা কৰিছে তেওঁ বচাব। টোপনি ভৰত মানুহে যদি কিবা এটা কৰে, মানুহে ঘপককৈ কিবা এটা কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰে নহয়। যিমানখিনি পাৰিছে তেওঁ যুঁজিছে, ময়ো পাৰিছোঁ। এজনী মাইকী মানুহ 4টা মতা মানুহৰ লগত যুঁজাটো বহুত দিগদাৰ। আপোনালোকেতো জানেই, এজনী মাইকী মানুহে মই কি কৰিম, কিমান সাহসত যুঁজিছোঁ। তেওঁ গুচি গ'ল। ছোৱালীজনী আদৰৰ সপোনবোৰ আদৰা কৰি থৈ গুচি গ'ল। সকলো সপোন আদৰা হৈ গ'ল। আৰক্ষী ফালৰ পৰা আৰক্ষীয়ে কৈছে, আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, চলাইছোঁ, আপুনি আমাক সহায় কৰক। মই যেনেকৈ পাৰিছোঁ তেনেকৈ সহায় কৰিছোঁ। যি জানো, যি মনত আছে, যেনেকৈ মই সহায় কৰিছোঁ। মাত্ৰ এটাই কথা, কাইলৈ আৰু যাতে আকৌ এটা ঘটনা নঘটে, ছোৱালীজনীকে মোকে যাতে ৰক্ষা কৰে, পুলিচে সেইটোৱে বিচাৰোঁ। ক'বতো নোৱাৰি সিহঁতে কাক কি বিচাৰি কি কৰে, ক'ব নোৱাৰি নহয়। ছোৱালীজনী স্কুল যাব, তেওঁকতো মই গোটেইখিনি দায়িত্ব মই পালন কৰিম। যদি হঠাৎ কিবা এটা হৈ যায়, আকৌতো কোনে ৰিস্ক ল'ব। অন্ততঃ পুলিচৰ ফালৰ পৰা মই এইখিনি সহায় বিচাৰোঁ। বাকী পুলিচৰ যিখিনি কাম, যিখিনি তদন্ত তেওঁলোকে কৰিছে, মই সহায় কৰিছোঁ, তেওঁলোকে বিচাৰ কৰিব, ইমানটো বিশ্বাস আছে। इस वीडियो में जो महिला को इंटरव्यू देते हुए देख रहे हैं, वो अपनी स्थानीय भाषा में अपनी कहानी बता रही है। दरअसल ये बता रही है 9 सितंबर 2024 को रात करीब 1:30 बजे 4 लोग उसके घर में आता है और फिर दरवाजा ठकठकाता है। वो उठती है और देखने की कोशिश करती है, तब भी 4 लोग उसको दरवाजा ठेल कर अंदर आता है और फिर
पूछता है कि तुम्हारे पति का है। उस दिन उसके पति अलग कमरा में सो रहा था, वो अपनी 6 साल की बेटी के साथ अलग कमरा में सो रही थी। अब उसका पति भी उस वक्त जाग जाता है। उसने वो तुरंत वो 4 व्यक्ति जो है वो पति की कमरा में जाता है और धारदार हथियारों से उन पर हमला कर देता है। उसने बचने की तमाम कोशिश की। जो महिला है उन्होंने भी अपनी पति को बचाने की तमाम कोशिश की, लेकिन 4 लोगों के सामने ये लोग कहाँ टिक पाता। उसने कहती है कि वो जो 4 व्यक्ति थे वो कहता है कि चुप रहो नहीं तो तुम्हें भी जान से मार दिया जाएगा, तुम्हें भी खत्म कर देंगे। अब उसके बाद वो हमला करके वहां से भाग जाता है। जब उनको एहसास हो जाता है कि ये व्यक्ति मर चुका है, अब ये लोग भाग जाता है। अब ये जो महिला है ये भी कहती है कि हो सकता है जो उनका पति है उनको पहले से अंदेशा हो चुका होगा, क्योंकि उसने मजाक मजाक में कभी कभार पूछते रहता था कि अगर मैं मर जाऊँ तो तुम लोग कैसे जियोगे, कैसे रहोगे। फिर वही बताता कि एक बेटी है तुम्हारा, आराम से जी सकते हो, पैसा जो मेरे रिटायरमेंट का पैसा वो भी आएगा तो आराम से तुम बेटी को पढ़ाना और फिर ठीक ठाक से अच्छा जो रह जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद ये लोग जो हमला करते हैं लोग तो चला जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये व्यक्ति को कौन और क्यों मारेगा। ऐसा कौन सा वजह थी जो रात 1:30 बजे 4 लोग आया काला कपड़ा लपेट कर और फिर उनकी पति को मौत के घाट उतार दिया। तो आइए जानते हैं क्या है पूरे घटना। नमस्कार आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपने ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है ये घटना आसाम की एक जिला डिब्रूगढ़ की है। डिब्रूगढ़ का एक गांव लगता है जो जेराई गांव है। जेराई गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम माधुर्य बरुआ होता है। उसके उम्र करीब 30 साल के आसपास थी। उसके जो माँ पिता जो काफी पहले गुजार चुका था। दरअसल वो जो जेराई गांव है वो जो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल उनकी गांव से नजदीक है, जो मुलुक गांव कहा जाता है। उसी गांव से सटा हुआ गांव है। तो उसके 6 बहन थी, 6 बहनों को शादी दे दिया। दरअसल वो जो है वो जल संसाधन विभाग में नौकरी भी किया करता था, एक सरकारी कर्मचारी भी था। अच्छा खासा पैसा था, बहुत खुशहाल था। उनका पत्नी और 6 साल की बेटी के साथ बहुत खुशहाल। अब कुछ दिन बीतता है, करीब शादी के 6 साल बाद यानी 7 साल बाद, 7 साल पहले उसका शादी होता है, जिस उसका पत्नी के नाम प्रोहेलिका बरुआ होता है। 1 साल बाद एक बेटी होता है जो अब फिलहाल 6 साल की है, ठीक ठाक रह रहा है। इसी बीच 9 सितंबर 2024 रात करीब 1:30 बजे यानी 10 सितंबर की सुबह की बात। तो रात 1:30 बजे 4 लोग उसका घर में आता है और दरवाजा ठकठकाता है। अब पत्नी जो है वो अलग कमरे में जो दरवाजे के पास है वो कमरा में सो रही थी। उसने दरवाजा खुला, देखने की कोशिश की कि कौन दरवाजा इतने रात को दरवाजा खटखटा रहा है। अब जब उसने दरवाजा खुलकर देखने की कोशिश की तो देखते हैं कि 4 लोग हैं। अब उसने दरवाजा ठेलकर अंदर आ गया। अब उसने वो अनजान लोग थे, जो 4 खूनी थे, वो पूछने लगे कि तुम्हारे पति कहाँ है। अब ये पूछती है क्यों। तो ये लोग पूछता है कि तुम पहले बताओ तुम्हारे पति का। इसी बीच उसका जो पति है वो भी जाग जाता है। अब दूसरे रूम से उसका आवाज आता है। तो फिर ये लोग चारों उस कमरे में चला जाता है और फिर चारों उनके पति जो माधुर्य बरुआ है उस पर टूट पड़ता है। उस पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देता है। जो धारदार हथियार थे उस पर, नाइफ सेफ तमाम जो धारदार हथियार थे उससे हमला करता है और कुछ ही देर में जो माधुर्य बरुआ होता है उसको मौत हो जाता है। दरअसल उसका पहले उसको बचाने की उसका जो पत्नी है प्रोहेलिका बरुआ तमाम कोशिशें करती है, लेकिन नहीं बचा पाती, क्योंकि ये 4 आदमी के सामने एक कहाँ टिक पाती एक महिला। तो इसका बाद ये लोग भाग जाता है। भागने के और उसको धमकी दिया जाता है कि किसी को बताना नहीं तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। अब ये लोग जाने के बाद जब भाग जाता है उसको जो तमाम रिश्तेदार है उनको फोन करती है प्रोहेलिका बरुआ और फिर तमाम रिश्तेदार आती है। आने के बाद देखता है कि जो माधुर्य के बॉडी वो लहूलुहान पड़ा हुआ, फर्श पर पड़ा हुआ है, खून से लथपथ। अब पुलिस को भी खबर दिया जाता है, जो चाबुआ थाना के पुलिस वो भी आता है। आने के बाद
इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, जांच शुरू करता है। अब शुरू शुरू में लग रहा था कोई लूटपाट, लेकिन लूटपाट तो हुआ नहीं। तो आप ये जो पड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनको भी पूछता है किसी का साथ दुश्मनी है क्या, लेकिन ये जो माधुर जो है बहुत सीधा साधा था, बहुत विनम्र स्वभाव का लड़का था। अक्सर लोगों को उसने हेल्प भी किया करता था। उसका गांव में उसको दूसरा नाम जो बाबली है उसी नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि छोटे छोटे बच्चा को, और शिक्षक भी थी, कोई छोटे छोटे बच्चा को बिना पैसा से उसने पढ़ाया, ट्यूशन लिया, तमाम लोगों को हेल्प करता था। बहुत अच्छे खासे नाम था गांव में, बहुत विनम्र स्वभाव के थे, किसी का साथ झगड़ा नहीं, किसी का साथ दुश्मनी नहीं। तो अगर दुश्मनी नहीं तो किसने और क्यों इस व्यक्ति को, इतने अच्छे व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। अब तमाम पहलुओं को, तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करता है पुलिस। कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड खंगाला जाता है, ऐसा कुछ नहीं मिलता है कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड की। अब जो पुलिस है उसका शक उसके पत्नी पर भी थोड़ा बहुत जाता है, लेकिन डायरेक्ट ऐसे कुछ बोल नहीं पा रहा है क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं है, क्योंकि पत्नी पर एक भी खरोच तक नहीं आया। अगर उसने दरवाजा, वो 4 व्यक्ति दरवाजा ठेल कर अंदर आया तो उसका भी तो कुछ खरोच हो सकता था, कुछ निशान हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा कि मैंने तमाम कोशिशें की, लेकिन अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उधर प्रदर्शन शुरू हो गया, गांव के लोग, तमाम लोग बाहर निकाला है। अब उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया। अब इसी बीच 3 दिन बीतता है और फिर आता है 14 सितंबर 2024 की वो दिन। इसी बीच जो तमाम रिश्तेदार है लोग भी आए हुए हैं। इस बीच जो महिला है, उसी जो इंटरव्यू आप देख रहे हैं वही इंटरव्यू दिया है। तो अब तमाम लोग आते हैं। जब उसने, ये जो महिला है, उसने अपनी जो मीडिया है उनको आप उस घर के अंदर दाखिल होने भी उसने मना कर देता है कि नहीं, घर के अंदर आप जाओ मत, क्योंकि सबूत से छेड़छाड़ हो सकता है। अब मीडिया को अंदर जाने नहीं देता है। इसी बीच 14 सितंबर 2024 को जो उसका बेटी होता है, 6 साल की बेटी, मासूम बेटी, वो लोग तमाम लोग बैठे हुए थे, रिश्तेदार बैठे हुए थे। उसके एक रिश्तेदार में चाचा लगता था, उनका चाचा के साथ और भी कोई रिश्तेदार है, वो बैठा हुआ था। तो भी वो 6 साल की बेटी कहती है कि पापा को तो माँ ने ही मरवाया है, माँ ने ही मारा है। अब ये बात सुनती है, पहले तो लगा कि शायद पिता का लाडली बेटी है, हो सकता है ऐसे बोल रहा है, लेकिन इस बात को कोई बार दोहराता है उस मासूम ने। और जो भी मासूम बच्चे कुछ बताता है तो उसमें सच्चाई होती है, क्योंकि वो बहुत मासूम होते हैं, वो जो देखते हैं वही बताता है। अब रिश्तेदारों की माथा भी ठनका। अब वो रिश्तेदार उस 6 साल की बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, चाबुआ पुलिस स्टेशन, और पूरे कहानी बताता है कि जो बेटी है वो ऐसा ऐसा बता रही है 6 साल की मासूम ने। अब पुलिस उसको पूछता है तो बेटी बताती है कि जे मेरा माँ ने ही मेरे पिताजी को मरवाया, मेरे पिताजी के सीने पर चढ़ गया, और फिर और एक अंकल आया था जो पहले भी कोई बार आ चुका था, पिताजी को मरवाया है। अब इस बात जब पुलिस सुनता है, पुलिस का भी माथा ठनकता है। पहले भी जो प्रोहेलिका बरुआ है उस पर कुछ शौक हो रहा था। अब पुलिस प्रोहेलिका को उठा लेता है और फिर उसको शक्ति से पहले तो पूछताछ कर रहा था, लेकिन वो इधर उधर की बातें करती है, कहती है कि छोटे बच्ची है, उसको कुछ पता नहीं, शायद वो ऐसे ही बता रही है। तो शायद वो डिप्रेशन में चली गई कि उसके पिताजी को हत्या हो चुकी है, पिताजी की लाडली थी वो। अब जब पुलिस उसको शक्ति से पूछताछ करने लगती है तो माधुर्य की बीबी प्रोहेलिका बरुआ पूरे कहानी को बयां कर देती है। अब कहती है कि 14 सितंबर 2024 को उसने उसका पति को मौत के घाट उतारा था। 10 साल हो पहले एक जो उसका प्रेमी के साथ, एक लड़का के साथ फेसबुक के जरिए, उसी की गांव के ही, वो अक्सर घर में आया जाया करता था, तो फेसबुक को भी चलाता था। अब उसी के बीच उसका साथ उसका दोस्ती होती है और फिर एक दूसरे को चाहने लगता है। अब उसका साथ अवैध संबंध हो जाता है। वो इसी चीज का शौक हो जाता है उसका पति जो है माधुर्य बरुआ को। अब माधुर्य बरुआ उसको पूछने लगता है तुम्हारा इसका साथ क्या चल रहा है, किसी का साथ क्या चल रहा है। लेकिन माधुर्य को ये पता नहीं था कि वही लड़का है।
उस लड़का का नाम मोइंतर गोगोई होता है। ये मोइंतर गोगोई के बारे में पता नहीं था। ये आवारा जैसा घूमता था, दारू पीता, शराब पीता, उधर उधर घूमता था। अब इसी को लेकर जो प्रोहेलिका बरुआ है उसका साथ अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था। लेकिन उसके जो 6 साल की बेटी, इसी वजह से इसका सामने लड़ाई झगड़ा बहुत कम होती थी, क्योंकि ये लोग कोई बेटी पर असर ना पड़ेगा इसके लिए इसका सामने, तो इसी वजह से किसी को ये चीज का बारे में पता नहीं चला। अब ये सब को लेकर जो प्रोहेलिका है वो थोड़ा बहुत चिढ़ने लगी अपनी पति से। अब 14 सितंबर को अपनी प्रेमी को कहती है कि कुछ नींद का दवाई मुझे ला कर दो। अब वो नींद का दवाई ला कर देता है और फिर उसको नींद का दवाई खिलाकर सुला देता है। और फिर उसको जो उसके प्रेमी होता है मोइंतर गोगोई, उसको बुलाती है और कहती है कि वो सो गया, आ जाओ आप घटना को अंजाम दे दो, अंजाम तक पहुंचाओ। अब ये आता है रात करीब 1-1:30 बजे। आने के बाद उसने धारदार हथियार से, पहले उसने हथियार रखा था, उसकी माँ ने उसका गला दबाया, फिर उसका जो प्रेमी है उसने धारदार हथियार से वार कर दिया, वार करना शुरू किया। और फिर जो उसका पति माधुर्य बरुआ है उसका मौत हो जाता है। जब उनको एहसास हो जाता है उसका मौत हो गया, अब उसको मार दिया गया, तो ये लोग भाग जाता है। और फिर उसने चिल्लाना चीखना शुरू कर देता है और उसका बेटी को धमकाता है कि तुम चुप रहना, किसी के सामने कुछ नहीं बताना है, नहीं तो तुम्हें भी ऐसे ही मार दूंगी। अब बेटी चुप रहती है, बेटी डर जाती है, चुप रहती है। अब दूसरे दिन जब आता है उसने मीडिया का सामने नाटक शुरू कर देती है कि 4 लोग आए थे, काला कपड़ा बना हुआ था, मुख में लपेट कर आए थे और फिर उसका पति को मारकर भाग गया। अब इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये पता चलता है कि गला दबाकर हत्या कर दी गई, धारदार हथियार से भी जो वार किया गया उसी से भी उस पर उधर गला भी दबाया, उधर धारदार हथियार से भी वार किया, उसी से उनका मृत्यु हो गई। अब पुलिस तीनों को गिरफ्तार करता है। दरअसल जब उसका प्रेमी मोइंतर गोगोई आ रहा था, उसका साथ उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम भास्कर सोइका होता है, वो भी उसका साथ आता है। अब तीनों मिलकर उस घटना को अंजाम देते हैं और फिर भाग जाता है। अब इस मासूम की जो 6 साल की बेटी है उसकी बातों से पूरे कहानी सामने आता है। उसका बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर तीनों अब फिलहाल जेल में है, आगे की कार्रवाई जारी है। अब पुलिस सबूत इकट्ठा करेंगे, उसका केस चलेगी, उसी हिसाब से उसका सजाएं होगी। अब जो गांव वाले हैं कहते हैं कि गाँव में आएगी तो उसको आने नहीं दिया जाएगा। उसके जो तमाम कपड़े हैं वो सब बाहर निकाल कर जला दिया जाता है। ये लोग जो प्रोहेलिका बरुआ है उसको कहता है कि वो मर चुका है, उसका जो क्रियाक्रम है ये लोग ये सब भी कर दिया जाता है। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है, कमेंट करना ना भूलना, कमेंट करके बताना कैसे लगा मेरे ये कहानी।